26. Shri Shuka Vacha Atambarishas Tanayeshu Rajam Samana Shileshu Vishrijya Dhiraha Vanam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadattvasta Guna Pravaha Atambarishasthanayeshu Rajam Samana Shileshu Vishrijya Dhiraha Vanam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadadvasta Guna Pravaha Atambarishas Tanayeshu Rajam Manashileshu Vishajya Dhiraha Vanam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadadvasta Guna Pravaha Shri Shuka Vacha Atambarishasthanayeshu Rajam Ambarishasthanayeshu Rajam Manashileshu Vishajya Dhiraha Manam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadadvasta Guna Pravaha Shri Shuka Vacha Atambarishasthanayeshu Rajam Samana Shileshu Vishrijya Dhiraha Vanam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadadvasta Guna Pravaha Shri Shuka Vacha Atambarishasthanayeshu Rajam Samana Shileshu Vishrijya Dhiraha Vanam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadadvasta Guna Pravaha Shri Shuka Vacha Shri Shukadeva Goswami said, Atha, in this way, Ambarishaha, King Ambarisha, Taniyeshu, unto his sons, Rajam, the kingdom, Samana Shileshu, who are equally as qualified as their father, Vishajya, dividing, Dhiraha, the most learned person, Maharaj Ambarisha, Vanam, into the forest, Vivesha, entered, Atmani, unto the Supreme Lord, Vasudeva, Lord Krishna, who is known as Vasudeva, Manaha, mind, Dadat, concentrating, Dvashta, vanquish, Guna Pravaha,
the waves of the material modes of nature. The Shukdev Goswami continued thereafter because of his advanced position and devotion with Maharaj Ambarisha, who no longer desired to live with material things, retired from active family life. He divided his property among his sons who were equally as qualified, and he himself took the order of Vanaprastha and went to the forest to concentrate his mind fully upon Lord Vasudeva. Shukdev Goswami continued thereafter, because of his advanced position in devotional life, Maharaj Ambarisha, who no longer desired to live with material things, retired from active family life. He divided his property among his sons, who were equally as qualified, and he himself took the order of Vanaprastha and went to the forest to concentrate his mind fully upon Lord Vasudeva. सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात भक्तिमय जीवन की उन्नत दशा के कारण गरीब भौतिक वस्तुओं की किसी तरह से इच्छा न रखते हुए सक्रिय ग्रस्त जीवन से निवृत्त हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने ही समान योग्य पुत्र में बांट दी और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्णतः एकाग्र करने के लिए जंगल चले गए। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा शुद्ध भक्त होने के नाते महाराजा अम्बरीश जीवन की किसी भी स्थिति में मुक्त, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि भक्त सदैव मुक्त होता है। यस्य हरे दास से कर्मणा मनसा गिरा निखला स्वस्था जीवन मुक्त समुच्यते। भक्ति रसामृत सूत्र में श्री रूप गोस्वामी उत्तर उपदेश देते हैं, यदि किसी एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करने की है तो वह जीवन की किसी भी दशा में मुक्त होता है। इस संदेश महाराजा अम्बरीश किसी भी दशा में मुक्त थे। आदर्श राजा के रूप में उन्होंने गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां त्याग करके वासुदेव के चरण कमलों में एकाग्र हो। इसीलिए महाराजा अम्बरीश ने अपना राज्य अपने पुत्र में बांट दिया और फिर वे गृहस्थ जीवन के लिए विरक्त हो। इति एतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। इति thus एतत् this punyam akhyanam, most pious activity in history, Ambarishasya, or Maharaj Ambarisha, Bhupate, O King Maharaj Parikshit, Sankirtayan, by chanting, repeating, Anudhyayan, or by meditating upon, Bhaktaha, a devotee, Bhagavataha, of the Supreme Personality Godhead, Bhavet, one can become. Anyone who chants the narration or even thinks about the narration about the acted Maharaj Ambarisha certainly becomes a pure devotee of the Lord. Prepared by Srila Prabhupada, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur herein a very good example. जो भी इस कथा को बार बार पढ़ता है या महाराजा अम्बरीश के कार्यकलापों से संबंधित इस कथा का चिंतन करता है, वह अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उत्तम उदाहरण दिया है। जब कोई मनुष्य धन के लिए अति लालायित रहता है तो वह लखपति या करोड़पति बन जाने पर भी संतुष्ट नहीं होता। कारण और अधिक धन कमाना चाहता है। ऐसे ही मनोवृत्ति भक्त में भी पाई जाती है। भक्त यह सोचकर कभी संतुष्ट नहीं होता कि मेरी भक्ति की यह सीमा है, तो भगवान की जितनी अधिक सेवा करता है उतनी ही अधिक सेवा करने की उसकी इच्छा व्यक्ति है। यह एक भक्त की दशा है। महाराजा अम्बरीश अपने गृहस्थ जीवन में सभी प्रकार से
शुद्ध भक्त थे, क्योंकि उनका मन, उनकी सारी इंद्रियां भक्ति में लगी रहती थी। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णियो। महाराजा अम्बरीश आत्मतुष्ट थे, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां भक्ति में लगी थी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्त्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। महाराजा अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भक्ति में लगाए रखते हुए भी अपना घर त्याग दिया और अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों पर एकाग्र करने के उद्देश्य से वे जंगल चले गए। वैसे ही जैसे एक व्यापारी धन धान्य से संपन्न होते हुए भी और अधिक धन कमाना चाहता है, भक्ति में अधिकाधिक लगे रहने की यह प्रवृत्ति मनुष्य को महान पद पर लाती है। कर्म स्तर पर जो व्यापारी अधिकाधिक धन चाहता है वह अधिकाधिक बंधन में फंसता जाता है, जबकि भक्त अधिकाधिक मुक्त हो जाता है। अम्बरीशस्य चरितम् ये शृण्वन्ति महात्मनः मुक्तिं प्रयान्ति ते सर्वे भक्त्या विष्णु प्रसादतः। अम्बरीशस्य और महाराज अम्बरीश चरितम कैरेक्टर ये persons शृण्वन्ति here Mahatmanaha of the great personality, the great devotee, Muktim, liberation, Prayanti, certainly they attain. They, such persons, Sarve, all of them, Bhaktya, simply by devotion service. Vishnu, of Lord Vishnu, Prasadataha, by the mercy. By the grace of the Lord, those who hear about the activity of the Maharaj Ambarisha, the great devotee, certainly become liberated or become devotees without delay. The Sanjay Bhakta, the purport of the 9th canto, 5th chapter of Srimad Bhagavatam, and Durasa Muni's lifespan. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Guruve Namaha. Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shunyavadi Pashati Deshatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna. अथाम्बरीशस्य तनयेषु राज्यम् समानशीलेषु विसृज्य धीरः वनं विषयेतात्मनि वासुदेवे
वनम विवेशात्मनि वासुदेवे मनो ददत ध्वस्त गुणा प्रवाह। Shri Shukadeva Goswami continued, thereafter, because of his advanced position in devotion with Maharaj Ambarisha, who no longer desired to live with material things, retired from active family life. He divided his property among his sons who were equally as qualified, and himself took shelter, took the order of Vanaprastha, and went to the forest to concentrate his mind fully upon Lord Vasudeva. तो अम्बरीश महाराज तो शुद्ध भक्त थे, पूर्णतः उनका मन कृष्ण भक्ति में लगा हुआ था। स मन ही वना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। कैसे कर रहा था उनका मन कृष्ण भक्ति में? उनका मन स वही मना कृष्ण पदारविंदयो, मन में हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे। यही भक्त का पहला लक्षण है। जब भी हम किसी को भक्त की ड्रेस में देखते हैं, कोई भी पब्लिक भी देखता है, तो हमारे बारे में क्या सोचता है? भगवान के बारे में सोच रहे हैं। भक्त का यही लक्षण है, कह रहे भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान के बारे में सोच रहा है। तो पहला भक्त का लक्षण, मन में क्या है उसके, क्या चीज है उसके मन में। बाहर तो ड्रेस है, तिलक है, कंठी माला है, मन में क्या है? मन में भगवान के बारे में सोच रहा है तो भक्त। स वै मन कृष्ण पदारविंदे वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। भगवद गीता में तो बहुत स्ट्रांग वर्ड लिखे गए। मिथ्याचारी सोचते, क्या श्लोक है? उठ के बता। मिथ्याचारी सोचते। सो भक्त का पहला लक्षण, उसका मन हमेशा कृष्ण के चरण में रहता है, नहीं तो उसको मिथ्याचारी। मिथ्याचारी बहुत स्ट्रांग वर्ड है, मतलब सुनने को अपमानित टाइप। मिथ्याचारी सोचते, मिथ्याचारी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाचांसी मतलब हमेशा अपने मुंह से कृष्ण कथा बोलता रहता है। दूसरा लक्षण, क्योंकि अंदर क्या है मन में तो कभी पता नहीं चलता। पता चलता जब आदमी बोलता है। क्या बोलता है वो? कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण भक्ति के बारे में बोलता है, कृष्ण कैसे कृष्ण भक्ति में प्रगति करना है उसके बारे में बोलता है। ठीक है, तो वाचांसी से पता चलता है मन में क्या है। करोड़ हरेर मंदिर मार्जन आदेशु, बहुत खुशी से भगवान की सेवा में लगा रहता है। मंदिर मार्जन आदेशु मतलब निम्न सेवा करने में भी उसको कोई हिचक नहीं। हरेर मंदिर मार्जन आदेशु, क्लीनिंग। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब देखे थे प्रताप रुद्र रथ यात्रा के पहले झाड़ू लगा रहा था, बहुत खुश हो गया बिकॉज करोड़ हरेर मंदिर मार्जन आदेशु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुति, हमेशा वो क्या चीज सुन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज आदमी सुन रहा है? श्रुतिम अच्युत अच्युत कथोदय, कृष्ण की कथा सुन रहा है। स वै मना कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करोड़ हरेर मंदिर आर्दनादिशु श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदय। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो, उसकी आंखें भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहती है। मुकुंद लिंगालय दर्शन तदवृत्ति गात स्पर्शांग संभ्रम। भक्तों के संग में उसको रहने का बहुत खुशी होता है, बहुत फायदा मिलता है। भक्तों के संग में रहना, फिजिकली रहना संग में नहीं होता। संग में मतलब 6 एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसको संग बोलते हैं। ददाति प्रतिग्रहणाति, भक्तों को अपना मन रिवील करना, भक्तों से शिक्षा लेना, उसको संग में रहना बोलते हैं। संग में फिजिकली रहना वो संग नहीं है। हो सकता है कोई आदमी संग में ना हो, जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु को खाली 4-5 बारी मिले थे बस, लेकिन पूर्णतः संग में थे, क्योंकि वो 6 प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे। ददाति प्रतिगृह्णाति, भुंक्ते भोजयते और गोह्यात् आख्याति। ये 6 प्रिंसिपल फॉलो कर रहे थे। बहुत सारे उनके गुरु भाई थे जो गुरु के साथ रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो संग में नहीं थे। फिजिकली थे लेकिन संग में नहीं। तो संग में रहना ये नहीं होता साथ रह रहे हैं, वो अच्छा है साथ रहना, लेकिन संग में रहना अलग चीज है।
तो इस तरह भक्ति में अम्बरीश महाराज लगे हुए थे, और उनका प्रगति इतना प्रगति था, हम उसका लक्षण देख चुके हैं कि एक बड़ा सिद्ध पुरुष भी उनको छू नहीं पाए। पूर्णतः उनको भगवान की सुरक्षा थी। हमारे लिए भगवान सुदर्शन चक्र क्यों नहीं रखे कि हम यही अथा माम, हम ही कुछ शरण नहीं लिए, हमको बहुत आगे जाना है। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले चीज मेडिटेट कर लीजिए कि अम्बरीश महाराज पूर्णतः शुद्ध भक्त थे, तब भी उनका वैराग्य देखे उनको राज्य से जाने की कोई जरूरत नहीं थी। शुद्ध भक्त तब भी सब छोड़ के चले गए, कोई अट्रैक्शन नहीं। भगवान की सेवा के रूप में वो राज्य कर रहे थे। सेम हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं युधिष्ठिर महाराज का भी। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि कृष्ण जी ने द्वारका धाम त्याग करके वैकुंठ धाम वापस चले गए, वो अपने राज्य से उनको कोई अट्रैक्शन, जस्ट पैलेस से निकल गए। उनकी बीवी द्रौपदी, उनके बच्चे, उनके भाई जो उनके साथ हमेशा रहे, उनकी तरफ देखा सीधा निकल गया। उनका अटैचमेंट कुछ भी नहीं था। उनका मूलतः कृष्ण की सेवा में लगे हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कि अभी तो कोई आदेश नहीं है भगवान का, तो मैं चलता हूँ उनके पास वापस आता हूँ, मेरे दुनिया में कोई काम नहीं है। वो दुनिया में राज्य को भोग नहीं कर रहे थे, वो भगवान की सेवा में लगे थे, तो उनकी सेवा में वापस चले गए। मतलब बहुत हाई प्लेटफॉर्म है। तो सेम वे अम्बरीश महाराज भी को कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो इसको एक्सप्लेन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में। मूलतः उनको आध्यात्मिक प्रगति में इंटरेस्ट था। तो उधर वो देते हैं कि देखो उनकी तो प्रगति थी बहुत भी, आगे क्यों जाने का। तो उनको उदाहरण दे रहे हैं ग्रीड का। ग्रीड मतलब लालच। तो भक्त को आध्यात्मिक प्रगति का लालच रहता है, इसलिए वो अपना हमेशा तपस बढ़ाता रहता है। भक्त मतलब तप करने का उसको इच्छा रहता है। वो अपना क्यों तप बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको प्रगति करना है। वो अपना लक्ष्य वैकुंठ धाम जाने का कभी छोड़ता नहीं। भक्त शुद्ध भक्त बन के भगवान की सेवा में जाना उसका लक्ष्य। उसके लिए वो समझ सकता है कि अभी बहुत आगे है, अभी बहुत आगे जाना है, इसलिए वो थोड़ा उसके लिए लालच होता है। उसको किस चीज का लालच है? प्रगति का लालच है। तो ये नहीं कि चलो भाई अम्बरीश महाराज संतुष्ट है, देखो भाई भगवान का सुदर्शन चक्र मेरे को बचा दिया, मैं तो बहुत महान भक्त बन गया। नहीं, मेरे को और आगे जाना है, और आगे जाना है। इसलिए वो पूरे अपने बेटों को जिनको ट्रेन किया था पूरा राज्य देके आध्यात्मिक प्रगति के लिए आ गए। तो हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इस दुनिया में तो लालच कुछ और चीज के लिए है। एक्चुअली पृथ्वी नाश हो रही है लालच की वजह से। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में भगवान ने हमारे लिए सामग्री नहीं दी है, लेकिन हमने लालच, एक साइंटिस्ट ने एनालाइज किया, बोला मैं सोचता था कि मेन प्रॉब्लम इस दुनिया में क्या है अभी, इकोलॉजिकल डिजास्टर, प्रकृति नष्ट हो रही है, ये मेन प्रॉब्लम है। सब साइंटिस्ट को मालूम है। मूलतः अभी हमारे पास ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साधारण व्यक्ति सोचता है टेररिज्म प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स प्रॉब्लम, ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। अभी मूलतः प्रॉब्लम हो गया है, प्रकृति नष्ट हो रही है। तो मैं सोचता था कि 20-30 साल की कुछ अच्छी साइंस करेंगे हम लोग, ऐसे कुछ निकालेंगे टेक्नोलॉजी जिससे हम इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब मेरे को ये लग रहा है कि मूलतः ये प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो है लोगों का लालच, जैसे जिसकी वजह से लोग पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने नहीं दिया सामग्री, भगवान ने सारे जीवों के जीने के लिए जरूरत से ज्यादा दिया है, बहुत सफिशिएंट दिया है, लेकिन लालच की वजह से लोग नष्ट कर रहे हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, उसके पास पर्याप्त धन है अपना घर चलाने का, लेकिन उसको बेटों के लिए भी चाहिए, पोतों के लिए भी चाहिए, पर पोतों के लिए भी चाहिए, 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने का उसका मन होता है। ऐसे होते हैं धंधा। प्रभुपाद जी उस टाइम में बात कह रहे थे जब बंगाल में ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ा अकाल डाला था, पूरे इंडिया में डाला था, बंगाल में बहुत लोग मर गए थे उसके चक्कर में, क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर के लिए लोग चाहिए थे, तो अकाल डाल दिया। तो खाना है नहीं, आ जाओ आर्मी में, नहीं तो मरो भूखे। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं आर्टिफिशियली क्रिएटेड। सडनली मार्केट में प्राइस उस समय 3-4 गुना हो गया था। साधारण व्यक्ति बहुत मुश्किल में आ गया था, बहुत लोग मरे।
लेकिन अकाल निकला तो देखा गया कुछ लोग तो बड़े करोड़पति बन गए। उसका फायदा उठा के कुछ लोगों ने, ऐसी स्थिति का ही फायदा उठा के ब्लैक मार्केट में वो लोग पैसा बना रहे थे। ठीक है, तो प्रभु जी बोले इन लोगों को देखो किस चीज के लिए पैसा बना, तो उनके तो पर्याप्त धन था अपने जीवन के लिए, नहीं बेटों के लिए, पोतों के लिए, 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा करने का। ये इसको बोलते हैं लोभ। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे। ये जो लोभ जो है रजोगुण तमोगुण से आता है। रजस्तमो भाव, इसका प्रभाव पागलपन है, किस एक तरह का माया का प्रभाव है पागलपन। रजोगुण तमोगुण से प्रभावित आदमी लोभी हो जाता है। किसके लिए? भौतिक वस्तु के लिए। जैसे अमेरिका में प्रभुपाद जी गए तो उसमें देख रहे थे नया नया चीज, 1971 का मॉडल है, अब 72 का मॉडल चाहिए। खाली कार में थोड़ा फर्क होता है, थोड़ा डिजाइन में, कभी कभी इंजन भी सेम रहता है, सब सेम रहता है, थोड़ा डिजाइन चेंज होता है। नहीं, अब 70 नया मॉडल चाहिए, और पुराना मॉडल लोग छोड़ देते हैं, बेच देते हैं, आधे रेट में भी नहीं बिकता कभी कभी, लेकिन फेंक देते लोग। तो लालच हुआ। अरे गाड़ी लिए यूज करो 10 साल या जितने साल अच्छे से मेंटेन करके, वो 1 साल में क्यों फेंक रहे हो? सदा रजस्तमो भावा कामलोभात है। दुनिया भर ऐसा ही, नया मॉडल आ गया मोबाइल का, पुराना फेंको। अरे मॉडल अभी चल रहा है, ठीक चल रहा है, क्यों फेंक रहा है? लालच, लोभ है, मेरे को लोभ है। तो इस लोभ के वजह से प्रकृति का नाश हो रहा है। तो बोला इसको निकालने के लिए, लोभ को निकालने का काम हम साइंटिस्ट लोग नहीं कर सकते, हमको नहीं पता कैसे निकालना है। ये काम तो स्पिरिचुअलिस्ट लोगों का है। मैं जब साइंस स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन बनाता हूँ, दिस इज वन ऑफ द कनेक्शंस। बिकॉज पृथ्वी का नाश हो रहा है, लोग लोभी हैं। ये लोभ को निकालना साइंस का काम नहीं, ये उनका एरिया नहीं है। ये बोलता है हमारा एरिया नहीं, इसका तो काम स्पिरिचुअलिस्ट को करना पड़ेगा। Therefore, science spirituality का एक और रीजन आ गया, it has to come. Why it has to come? Because people are greedy. तो ये लोभ की वजह से लोग पूरा पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें दिन पे दिन जीना मुश्किल हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सेम लोभ चीज भक्त में भी होता है तो अच्छा होता है। गीता में लोभ तो दानव प्रकृति दिखा गया, इतना मेरे पास धन है कल और हो जाएगा। कोई अपना पासबुक देखता रहता है इस तरह, उसको भगवत गीता दानव बोलते हैं। क्यों भाई? बिकॉज भक्त इस चीज का नहीं बढ़ावा देगा। ठीक है, कोई चीज तो बढ़ने का, कोई चीज तो बढ़ने का। हमारा कृष्ण जी भी बढ़ते रहते हैं, एक्सपैंड होते हैं, उनकी लीला ही बढ़ती रहती है। अगर हमारा आध्यात्मिक सुख नहीं बढ़ेगा, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बढ़ेगा, आध्यात्मिक दर्शन नहीं बढ़ेगा, तो भौतिक रूप में बढ़ना चाहेंगे। बेटा, पोता, परपोता, ये भौतिक रूप में लोग बढ़ना चाहते हैं। मतलब मेरा संसार कुछ तो बढ़ने का। लेकिन भक्त का शांति क्यों रहता है? बिकॉज आध्यात्मिक प्रगति बढ़ती रहती है, उससे खुश रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति होती रहती है, उससे खुश रहता है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए समाज को सतगुण में आना पड़ेगा। अभी समाज दानव प्रकृति, रजोगुण तमोगुण मतलब दानव। दानव को ऐसा नहीं उसके सिर में हॉर्न होता है। दानव मतलब जो आदमी रजोगुण तमोगुण को कल्टिवेट करता है। बिकॉज सतगुण में जो आदमी होता है दूसरे आदमी को भी खुश करता है, अपना भी खुश रहता है, दूसरा भी खुश करता है। और सतगुण में उसमें तपस की शक्ति बढ़ती रहती है। भक्त मतलब तपसी, उसको तपस्या बढ़ती रहती है। सतगुण में आदमी तपस के लिए रेडी रहता है। समो दम तपा शौचम, तपा ये सतगुण के लक्षण है। समाह मन का कंट्रोल, दमह इंद्रियों का वश, तपा तपस्या, शौचम क्लीनलीनेस, समाधमा तपा शौचम शांति, टॉलरेंट, आर्जवम सिंपल, एवच ज्ञान पूरा ज्ञान की इच्छा, विज्ञान दर्शन की इच्छा। ये ब्राह्मण के लक्षण है। ब्राह्मण मतलब एक सत्वगुण का आदमी। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, तो ब्राह्मण में ये सब गुण बढ़ते रहते हैं। तो तपस्या, क्यों तपस्या बोल रहे थे हम लोग? तो समाधमा तपा, ये तप का हमारा लक्षण अच्छा है, तो तप के लिए आदमी रेडी रहता है। तो सत्वगुण चाहिए। अभी लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं। तो माया का मतलब लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं, इसलिए लोग तप नहीं करते। उनको बोलो तप करना है, क्यों तप करें? रजोगुण तमोगुण में आदमी तप नहीं कर सकता, उसको इंटरेस्ट नहीं होता। तपस्या से किस चीज के लिए? आनंद करने का, मजे करने का नहीं। लेकिन सत्वगुण में आदमी तप के लिए रेडी हो जाता है। और उसमें ये 9 गुण जो दिए हैं भगवत गीता में, समाधवा तपा शौचम शांति मार्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावकम, ये ब्राह्मण के गुण, सत्वगुण के गुण उसमें
विजिबल होने लगता है, तो आदमी तब करने के लिए तो ग्रीड किधर आएगा? तो सत्वगुण में आदमी के पास लोभ कभी नहीं आता। लोभ तो रजोगुण तमो, काम लोभा तदा रजस तमो भावा, काम लोभा, लोभ जब आता है रजोगुण तमोगुण से प्रभाव, ज्यादातर तमोगुण का प्रभाव, पागलपन है, क्योंकि नहीं चाहिए उसके लिए भी आदमी चिंतित होकर बैठा हुआ है, पागल है। तो इससे समाज पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है इसकी वजह से। तो इसको निकालने के लिए समाज को, हमको ग्रीड को निकालने के लिए हमको समाज को सत्वगुण में लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। तो लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट का ये गलत विचारता है, सेकुलर। सेकुलर मतलब गवर्नमेंट सोचती है हमको किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, हम खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करेंगे। नहीं, वो तो वैश्य का काम है। आप तो क्षत्रिय बैठे हो, वैश्य खाली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करता है, आप तो क्षत्रिय हो, आप अपने ड्यूटी के लायक नहीं हो। क्षत्रिय का काम है देखने का कि लोग सत्वगुण को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज जब राजा थे, युधिष्ठिर महाराज उसके पहले राजा थे, उन्होंने देखा कि लोग लोभी हो रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, लोग तरह तरह के अवगुण दिख रहे हैं। उनको लग गया कलयुग का प्रभाव आने वाला है, और उनको वैसे भी मन नहीं था, कृष्ण जी तो चले गए, तो वो चले गए दुनिया से। और अपने बेटे को बोला, तुम, पोते को बोला, तुम देख लो इस चीज को। तो परीक्षित महाराज देख रहे थे ध्यान से। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई हो तो छतरी नहीं लगाएंगे, उन्होंने छतरी लगा दी सबके लिए। 4 चीज उन्होंने अपने राज्य में बैन कर दी। क्या 4 चीज? द्यूतम, कोई जुआ नहीं, पानम, कोई नशा नहीं, स्त्रियम, पराय स्त्री से कोई संपर्क नहीं, शुना, मीट। तो द्यूतम, पानम, स्त्रियम, शुना, उन्होंने 4 चीज अपने राज्य में बंद कर दी। तो सत्वगुण आ गया। प्रभु जी से बहुत बारी भक्त लोग पूछे सत्वगुण कैसे प्रभु जी पहुंचने का? वो जो 4 चीज बंद कर दो, सत्वगुण में पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल है। हाँ, द्यूत, जुआ बंद कर दो, पानम, नशा बंद कर दो, स्त्री, पराय स्त्री से कोई संपर्क नहीं रखो, शून, मीट नहीं खाओ, हो गया सत्वगुण। और सत्वगुण आते ही दूसरी तरह से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो कोई भी धर्म पालन करो, उससे हमको मतलब नहीं है, तब धर्म अच्छे हैं, लेकिन धर्म का फल मिलना चाहिए। क्या चीज है धर्म का फल? आदमी के पास 4 गुण मिलने चाहिए। सत्य, आदमी ट्रुथफुल हो जाना चाहिए। शौचम, आदमी बहुत क्लीन हो जाना चाहिए, मेंटल, इंटरनली एक्सटर्नली आदमी क्लीन होना चाहिए। सत्य, आदमी को हमेशा आदमी को सच बोलना चाहिए। सत्य, शौचम, दया, आदमी बहुत ही कृपालु बन जाना चाहिए। और तपहा, आदमी में तपस की शक्ति बननी चाहिए। तो अगर कोई भी धर्म पालन कर रहे हो, करो, ये तो आपकी इच्छा है। इस पे स्टेट को इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर जो धर्म पालन करना है तो करो, लेकिन हमको ये 4 रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है। क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? धर्म का मतलब जैसे स्कूल की तरह, आदमी अंदर आया अज्ञानी, बाहर आया ज्ञान के साथ, है ना? ये तो स्कूल का क्या मतलब है? तो सेम वे आप कोई भी धर्म पालन करो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन हमको रिजल्ट देखना चाहिए। अरे भाई, आपके दिल में तो कृष्णा है, ये तो हमको मालूम नहीं, लेकिन बाहर हमको 4 चीज देखनी चाहिए। आप बहुत ही क्लीन हो गए हैं, इंटरनली एक्सटर्नली आपका मन शुद्ध हो गया है, सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण धर्म का। आप सत्य बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, आप बहुत दयालु बन गए हैं, दूसरे लोगों में कृपा करते हैं, और आप में तपस की शक्ति बन गई है। तो ये 4 चीज जब डेवलप हो रही है तो हमको दिखता है वो सही धर्म का पालन कर रहे हैं। करेक्ट? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म घर में नहीं बनाया जाता है, तो भगवान देते हैं। ठीक है, 1-2 चीज है, लेकिन जो भी धर्म पालन कर रहे हो, ये लक्षण अगर नहीं मिल रहे तो फिर क्या फायदा होगा? तो इस तरह समाज, गवर्नमेंट को मतलब बिल्कुल भी अनइंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए कि लोग क्या धर्म पालन करें। गवर्नमेंट को बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। ये रिजल्ट आ रहा है यार, इस चीज से गवर्नमेंट को मतलब नहीं आप कौन सा धर्म पालन करो, लेकिन रिजल्ट होना चाहिए। धर्मे न विहीना पशु भी समाना। धर्म पालन नहीं करेगा आदमी पशु बन जाएगा। पशु बनेगा तो फिर ये लोभ से भरा रहेगा, और लोभ से भरा रहेगा तो अपना भी डिस्टर्ब रहेगा, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगा, प्रकृति को भी नाश कर देगा, पागल हो जाएगा। तो यही एक्चुअली चल रहा है। इससे अच्छा भक्त को भी ग्रीड रहता है, भक्त को ग्रीड रहता है भगवान के सेवकों की संख्या बढ़ाते रहने का। भगवान
कि भगवान तो पूर्ण रूप से आत्माराम है, संतुष्ट है। भगवान को कोई खुश नहीं करने का इस तरह से, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। लेकिन जब भगवान की सेवा होती है तो उनका आनंद बढ़ता है। तो भक्त को इस चीज का लोभ बढ़ाते रहने का, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और लोग भगवान के सेवा में लगने का, इस तरह भक्त का विचार रहता है। और अम्बरीश महाराज भी ऑलरेडी भक्त थे, महान भक्त थे। भगवान का सुदर्शन को अभी खुद बचाया, लेकिन वो और प्रगति चाहते हैं, वो कृष्ण के चरण में और सेवा चाहते हैं। ये हमको डेवलप होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हाँ, मिला श्लोक? नहीं मिला। हाँ, मिथ्या 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 से बन रहा है। आचार मतलब आचरण, मिथ्या मतलब गलत। सेल्फ स्टाइल डॉक्टर, he is not qualified, but he himself takes as a doctor, that is mithya. स्ट्रॉन्ग वर्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग।